آج نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک چھوٹی سی تسبیح جس نے پڑھی غیب سے فوراً 800 کروڑ ملیں گے، یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آج اس عمل کو آپ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے فوراً بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود لے رکھی ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، چاروں کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 3 کتابیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زیر زبر پیش، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن پاک کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کی دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے۔ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ خود کہے گا کہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو اپنا کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہونا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ فرمائے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری جو ہوتی ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی، آپ دن رات ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہی ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے۔
हमारी तो ज़िंदगी दुश्वार हो रही है, तो इस मुश्किल वक़्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इस अमल को कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप इस बंदा नाचीज़ को दुआएँ देंगे। मुख्तसर सा अमल है और जो लोग रोज़ असर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर हाथ उठाकर जो मांगते हैं इसे मिल जाता है। नाजरीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ी गोया इसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ ले, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत जैर बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मशक्क़त और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले फजर और गुरूब से पहले असर की नमाज की पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। तर्जुमा, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल हो गया। असर की नमाज के बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आप जब नमाज असर अदा कर लें, इसकी एक और शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात हैं इनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। और बाजमात नमाज अदा करने की एक बड़ी वजह यह है कि इस वजीफ़े का असर तभी होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे। और ख़वातीन इस वजीफ़े को घर में कर सकती हैं, इनके लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि हमारी जो एक और कोताही आजकल माशरे में जो दिख रही है वो ये है कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर कोताही और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। जो मर्द हजरात हैं इन्होंने 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी है। और जब आपने असर की नमाज बाजमात अदा कर ली, एक तो वो दुआ होती है जो फ़र्ज़ नमाज के बाद सब हाथ उठाकर मांगते हैं, और वो दुआ आपने मांगनी है। इसके बाद आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक ज़ाती दुआ है इसकी दियाद उठाना है। अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले जब आप नमाज असर अदा कर लें तो जाए नमाज पर बैठे-बैठे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने में आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हासिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें। आप दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार, मसाइल का हल, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके दिल में जो आता है आज मांग लो। जो जितना मांग सकता है मांग ले। रब करीम ने चाहा तो आज आपकी हर हाजत पूरी होकर रहेगी इंशाअल्लाह। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है। वो सिफ़ाती नाम या रज़ाक है। या रज़ाक का मतलब है कि ए रिज़्क देने वाली ज़ात, आज मुझे आपको पूरी दुनिया में सारी मखलूक़ात को जो रिज़्क मिल रहा है वो ये रज़ाक की सिफ़त से मिल रहा है। आपने भी अल्लाह ताला को रिज़्क देने वाली सिफ़त या रज़ाक से पुकारना है। आप या रज़ाक को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाक एक बार हो गया, या रज़ाक 2 बार हो गया, या रज़ाक 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाक को अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 10 बार पढ़ना है। आपने पहले नंबर पर या रज़ाक को 10 बार पढ़ लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफ़ाती नाम या वहाब है। या वहाब को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाब 1 बार हो गया, या वहाब 2 बार हो गया, या वहाब 3 बार हो गया।
इस तरह से आप या वहाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अब आप तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। ये सूरत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दिया है। एक बार सवाब की नियत से सूरह कौसर की तिलावत समाप्त फरमा लीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस तरह से आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जो वजीफ़ा जितनी बार बताया जा रहा है, आपने इतनी ही बार पढ़ना है, कभी बेशी मत कीजिएगा। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए, तो अब आपने चौथे नंबर और आखिरी नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बड़े कमाल का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा भी कुरानी सूरत का है। वो सूरतें जिन्हें चारों कुल कहा जाता है, आपने चौथे नंबर पर चारों कुल पढ़ने हैं। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा करने की ख़ास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यानी आप नमाज असर पढ़ने बगैर ये वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा कारआमद नहीं होगा। नमाज असर के चंद फ़ज़ाइल, इसकी अहमियत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से किसी के एहल व माल में कमी कर दी जाए तो ये इसके लिए बेहतर है जिसकी असर की नमाज फौत हो जाए। इसके अलावा जिसकी असर की नमाज जाती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। हज़रत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाज़ें पढ़ी, फजर और असर की नमाज, तो वो जन्नत में जाएगा। इसके अलावा एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक्त है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो फ़ौरन मिल जाता है। आप दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको अता करेगा। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगदस्ती फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे, आप माला माल हो जाएंगे। आपकी बदकिस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राज़ी हो जाएगा। इतना नवाज़ेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि कहाँ-कहाँ से दौलत आ रही है। जब आप ये अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, ये वजीफ़ा करेंगे तो ऐसी-ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिज़्क अता करेगा जहाँ से आपके वहमो-गुमान में भी नहीं आ सकता। ये अमल ऐसा मज़बूत है कि भिखारी भी करे तो बादशाह बन जाए, गरीब करे तो गनी हो जाए, अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए। आप इस वजीफ़े को लाज़मी कीजिएगा। इस वजीफ़े की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फरमाए। आमीन। तमाम अहबाब से गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।